Hello everyone, let's start with Unit 9 Biotechnology. Chapter 9 Biotechnology Principles and Processes. First, we will go through the introduction of scientist Herbert Boyer. He performed studies on a couple of restriction enzymes of E. coli bacterium. Remember the E. coli bacterium? And Stanford scientist named Stanley Cohen. Remember Stanley with Stanford? He was from Stanford. So he had been studying on the small ringlets of DNA called plasmids. Plasmids live freely in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of the DNA. This line can be asked. So plasmids replicate independently from the coding strand of the DNA. Bohr and Cohen to combine segments of DNA in desired configurations and insert the DNA in the bacterial cells, which could then act as the manufacturing plants for specific proteins. We are talking about the recombinant proteins here. So we got to know that Herbert Boyer worked on the E. coli bacterium and studied on the couple of restriction enzymes. And Cohen studied about the plasmids, which lie freely in the cytoplasm and replicate independently of the coding strand of the DNA. So starting with the chapter, biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. So biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes that are useful to the humans. In this sense, making curd, bread or wine, which are all micro-mediated processes, could also be thought as a form of the biotechnology. Yes, we can thought these as a form of conventional biotechnology. So, however, it is used in the restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale. So further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of the biotechnology. These are important lines you have to remember. In vitro fertilization leading to test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology. European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional and modern molecular biotechnology. So the definition is as follows. The integration of natural science and organism cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. So repeat it again. Integration of natural sciences and organism cells, parts thereof and molecular analogues of products and services. Principles of biotechnology. Biotechnology is based on two principles: genetic engineering and bioprocess engineering. So, two core techniques that enable birth of modern biotechnology are genetic engineering and bioprocess engineering. So, let's learn about genetic engineering. Techniques to alter the chemistry of the genetic material, DNA and RNA. Genetic material can be only DNA and RNA. We have already studied in the molecular principles of inheritance that genetic material can either be the DNA or the RNA. So techniques to alter the chemistry of genetic material comes in genetic engineering to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. So bioprocess engineering, maintenance of sterile microbial contamination-free ambience and chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities. For the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes और etc. यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेराइल और कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में कि हमारा सिर्फ डिज़ायर माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल, रिमेंबर डिज़ायर माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल can grow in the large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. Let us now understand the conceptual development of principles of genetic engineering. So we have learned the two core techniques of biotechnology, that are genetic engineering and the bioprocess engineering. So let's move next. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Yes, we appreciate the advantages of sexual reproduction because it provides a variation,
whereas the asexual reproduction do not provide any variation. The former provides opportunity for variations. Former means यहाँ पे we are talking about the sexual reproduction. So sexual reproduction provides opportunities for variations and formulation of unique combinations of genetic setup. Because यहाँ पे variations होता है और recombination होता है. Because of that हमारे पास unique combination of genetic setup मिलेंगे rather than the parental setups होती है. So some of which may be beneficial to the organism as well as the population. जिसमें से कुछ mutations ऐसे होंगे जो हमारे लिए beneficial होंगे. Asexual reproduction preserves the genetic information. ये preserve करके रखता है. While sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization processes used in plants and animal breeding very often lead to the inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable gene. देखिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्यों नीड पड़ा, हमें इसलिए नीड पड़ा क्योंकि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस होते थे हमारे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में, उनकी वजह से क्या होता था, उनमें हमें जो डिज़ायर्ड जीन है उसके साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी चले आते हैं थ्रू द मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन हो जाता था उनका, तो उसकी वजह से हमें अनडिज़ायरेबल जीन्स भी मिल जाते थे अलॉन्ग विद द डिज़ायरेबल जीन. द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one set of the desirable gene without introducing the undesirable genes into the target organism. So techniques of genetic engineering से हम जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको यूज़ करना जीन क्लोनिंग के लिए और जीन ट्रांसफ़र करना, दिस लिमिटेशन को ये ओवरकम कर देता है और अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली one or the set of the desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. So, do you know the likely fate of the piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? This question is asked in 2024. Likely the fate of the piece of the DNA which is somehow transferred into an alien organism. Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद को प्रोजेनी सेल्स में, बट when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. अगर वो एक बार इंटीग्रेट हो गया जीनोम में रेसिपिएंट के, तो वो मल्टीप्लाई भी कर जाएगा और इनहेरिट भी कर जाएगा होस्ट डीएनए के साथ साथ. दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. वो एक क्रोमोसोम का पार्ट हो गया है जो कि होस्ट सेल्स के पास है, तो होस्ट सेल कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द inherited DNA or the part of their chromosome only, so which has the ability to replicate. So in a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication, ORI. We have remembered ORI, प्लाज्मिड में भी हम देखेंगे ORI साइट होता है, origin of replication, which is responsible for initiating replication. Any part of the DNA when attached to the origin of replication is responsible for initiating the replication. So therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of the chromosome which has a specific sequence called origin of replication. तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन इट्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. सो थस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट द एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. अगर जो एलियन पीस ऑफ डीएनए वो ORI के साथ लिंक हो गया, तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. किसी भी टेम्पलेट डीएनए के आइडेंटिकल कॉपीज बनाना या फिर इसी प्रोसेस को हम क्लोनिंग भी कहते हैं. Now let us focus on first instance of construction of artificial recombinant DNA molecule. Construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium. देखो जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो कैसे इमर्ज हुआ कि हम किसी भी जीन जो एक जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंकोड कर रहा है उसको हम लिंक कर पा रहे हैं किसी नेटिव प्लाज्मिड के साथ, वो भी सैल्मोनेला टाइफिमरियम के नेटिव प्लाज्मिड के साथ. व्हाट इज़ अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे सकते हैं सेमी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग या फिर सेमी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की जगह सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए. तो वी हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स.
for marking the correct answer. Plasmid is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. जो DNA होता है बैक्टीरिया के पास वो तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, ये अलग से प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलर DNA होता है, ठीक है। और ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ द कोडिंग और द टेम्पलेट स्ट्रेंथ of the main DNA. So Stanley Cohen and Herbert Boyer, we have talked about these both scientists earlier also. इन दोनों साइंटिस्ट में ये क्या था, ये स्टैनली कोहेन मतलब S फॉर स्टैनफोर्ड, ये स्टैनफोर्ड के हैं। एंड व्हाट ही फाउंड द प्लाज्मिड को इन्होंने फाउंड किया था कि वो इनहेरिटेड कर सकते हैं। और हर्बर्ट बॉयर ने किस पे स्टडी की थी, इन्होंने स्टडी की थी कपल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन द ई कोलाई DNA. So they accomplished this in 1972. Remember the year 1972. 1972 में इन्होंने accomplish किया by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out the piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring the antibiotic resistance. इन्होंने क्या किया, एक antibiotic resistant gene को isolate करने का ट्राई किया by cutting out a piece of DNA. एक piece of DNA निकाला इन्होंने plasmid से जो responsible था antibiotic resistance को confer करने के लिए. So cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of so-called molecular scissors or restriction enzymes. तो ये जो DNA इन्होंने प्लाज्मिड से कट किया जो कन्फर कर रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो उसको इन्होंने कट किया विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर सीजर्स विच आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो द कट पीस ऑफ द DNA वॉज दैन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड DNA. जो इन्होंने पीस कट किया DNA का उसको इन्होंने दैन लिंक किया प्लाज्मिड DNA के साथ. दिस प्लाज्मिड DNA एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ द DNA अटैच्ड टू इट. तो ये जो प्लाज्मिड DNA इन्होंने जिसमें इन्होंने लिंक किया अपना जीन, वो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे थे टू ट्रांसफर द पीस ऑफ DNA अटैच्ड टू इट. यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज द इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी. मॉस्किटो जो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वो इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है ना मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में लाने के लिए. सिमिलरली क्यूलिक्स मॉस्किटो भी हेल्प करता है फाइलेरियासिस को स्प्रेड करने के लिए. एंड वी हैव लर्न अबाउट डेंगू एंड चिकनगुनिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो. So these all are the vectors. These all are the insect vectors. Similarly जो प्लाज्मिड हमने जिसमें हमने लिंक किया अपना DNA, वो भी वेक्टर की तरह हेल्प कर रहा है टू ट्रांसफर द पीस ऑफ DNA. ठीक है. So in the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA to the host organism. The linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. अब जो ये अब पॉइंट ये आता है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड के साथ लिंक कैसे करेंगे. तो दिस वाज पॉसिबल विद द एंजाइम DNA ligase. तो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चाहिए था किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, तो उसे हमने कट किया विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज द मॉलिकुलर सीजर्स. अब हमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने निकाला उसे हमें दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जो है लिंक करना है, तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए DNA ligase. Ligase मीन्स दो स्ट्रैंड्स को जोड़ देगा, ठीक है, which acts on cut DNA molecules and join their ends. This makes a new combination of circular and autonomously replicated DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. अब इसको हम recombinant DNA क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड DNA तो है लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारा डिज़ायर्ड DNA का पीस है, एलियन पीस ऑफ DNA है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कंसिस्ट करता है. तो रिकॉम्बिनेंट DNA हो गया ना, हमने दो DNA मिला के एक बनाया, और क्योंकि हमने इन विट्रो बनाया, हमने अपने लैब में बनाया, तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA. When this DNA is transferred into E. coli, Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase and make multiple copies. अब इस जो प्लाज्मिड हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, जो प्लाज्मिड में कनेक्ट करके हमने जो प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं E. coli के अंदर, जो बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड है सैल्मोनेला से. तो वो रेप्लिकेट करेगा लेकिन होस्ट के DNA पॉलीमरेज यूज़ करके करेगा और मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा. द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. अब क्योंकि हमने E. coli में ऐसा प्लाज्मिड ऐड किया जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, उसमें हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो क्योंकि प्लाज्मिड जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है और DNA का पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करता है और मल्टीपल कॉपीज़ बना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग. और ये E. coli में हो रहा है बिकॉज हमने E. coli को अपना होस्ट माना था.
you can infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism. Identification of DNA with desirable gene. हमें कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, हमें उसमें होस्ट में कैसे डालना है, होस्ट में डालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. तो हमें मेंटेन करना है कि इंट्रोड्यूस डीएनए जो हमने डाला है वो होस्ट में रहे और वो नई कॉपीज़ बना पाए, तो वो ट्रांसफ़र कर पाए अपना डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. Tools of recombinant DNA technology. Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. Key tools क्या हो सकते हैं? Restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors in the host organism. Host organism क्या था वहाँ पे? E. coli था. Vector क्या था? Vector था plasmid DNA. लाइगेसेस क्या करते थे? लाइगेसेस हमारे जो डिज़ायरेबल जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है और प्लाज्मिक डीएनए उनको ज्वाइन करते थे. पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं? पॉलीमरेज एंजाइम होस्ट में प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है इन द क्लोनिंग प्रोसेस. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों लेते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने आइडेंटिफाई किया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे प्लाज्मिक डीएनए से कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. Restriction enzymes in the year 1963. In the year 1963, 1972 में क्या किया? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना सीखा. 1963 में क्या हुआ? The two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. E. coli क्या है? E. coli बैक्टीरिया है. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. सो two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. 1963 में दो एंजाइम आइसोलेट की गई जो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज ई. coli के अंदर. वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए. मिथाइल ग्रुप क्यों ऐड कर रहा था डीएनए में कि जो एंजाइम है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज की, वो हमारे होस्ट के डीएनए को ना अफेक्ट करे, हमारी होस्ट के डीएनए को ना रेस्ट्रिक्ट करने लगे. सो हम होस्ट के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करती है एक एंजाइम कि वो डिस्टिंग्विश हो जाए, व्हाइल द अदर कट्स द डीएनए. दूसरी एंजाइम जो है वो कट कर देगी डीएनए को. लेटर वाज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. The first restriction endonuclease, HIN2. HIN2 was the first restriction endonuclease whose functioning depended on the specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. तो हिन सेकेंड जो है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी फंक्शन डिपेंड है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे और आइसोलेटेड और कैरेक्टराइज्ड 5 years later. It was found that hin second always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This specific base sequence is known as recognition sequence for hin second. हिन सेकेंड के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर्स पे कट करता है. वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है 6 बेस पेयर का, जिसे रिकॉग्नाइज करेगा वो तभी कट करता है. और क्योंकि एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर या लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर इतनी ही जगह पे कट करता है. और जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस कट एट द एंड्स. So hin second was the first restriction endonuclease. Remember endonuclease. Okay. So it was found that hin second always cut DNA and molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This specific base sequence is known as the recognition sequence for hin second. Besides hin second, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. मतलब हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक ढूंढ ली है और उन्हें आइसोलेट किया सिर्फ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से. सो रिमेंबर वी कैन गेट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स only. One question have been asked in the previous years like restriction enzymes can be isolated from bacteria, yeast, fungi or plants etc. So answer should be bacteria only. Each of which recognize different recognition sequence. और हर एंजाइम जो हमने 900 आइसोलेट की है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, वो सारी जो है डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस रखते हैं. So what was the recognition sequence for hin second? 6 base pairs. Okay. The convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus. First letter जो है name का वो genus से आता है. Second 2 letters come from the species of the prokaryotic cell.
फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। ईगो R1 की बात करें, ईगो R1 में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस एस्टेरिया, और सेकेंड 2 वर्ड्स जो होते हैं वो स्पीशीज से आते हैं, कोलाए, RY13। सो इस स्ट्रेन से निकल के आता है ईगो R1। दिस इज एन एंजाइम और ईगो R1 comes from Escherichia coli RY13. In ईगो R1 the R is derived from the name of the strain, और रोमन नंबर जो है following the name indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. अब now the question arises, HIN 2 पहले कैसे डिस्कवर हो गया, HIN 1 कैसे डिस्कवर नहीं हुआ। सो जो रोमन नंबर्स हैं वो इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सो जिसकी फंक्शनिंग हमने पहले चेक की वो हिन सेकेंड था। Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. These are of two types, exonucleases and endonucleases. Like we have talked earlier, restriction enzyme दो टाइप के होते हैं, endonuclease और exonuclease. Exonuclease क्या करता है, remove nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonuclease क्या करता है, endonuclease make cuts at the specific positions within the DNA. Like HIN second was the endonuclease, और वो स्पेसिफिक पोजीशन रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे 6 बेस पेयर के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे ही कट कर रहा था, एंड्स पे कट नहीं करता था। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of the DNA sequence. Once it finds a specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at specific points in the sugar phosphate backbone. जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कट कहाँ पे करते हैं, वो कट करते हैं डबल हेलिक्स पे, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करते हैं, एक स्ट्रैंड पे नहीं करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स पे करते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन दोनों में पढ़ने में सेम रीड होगा। These are known as a palindromic sequence. Like we know madam, MADAM. So we will read madam like this, MADAM, and this side से भी पढ़ेंगे तो MADAM। तो दोनों साइड से सेम सीक्वेंस जो है मिलेगा। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Action of restriction enzymes. The enzyme cuts both the DNA strands at the same site. दोनों strands पे same site पे cut करेगा। ईगो R1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA. Remember this enzyme, ईगो R1. ईगो R1 कट करता है DNA को between the bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA. अब देखो ईगो R1 भी डिपेंड करता है हमारे एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, और बिकॉज इट इज़ नॉट कटिंग ओनली एट द एंड्स, सो ईगो R1 जो है वो भी एंडोन्यूक्लियस है। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। तो वेक्टर डीएनए लिया हमने, फॉरेन डीएनए लिया, हमने दोनों को ईगो R1 से कट किया। दोनों को ईगो R1 से क्यों कट किया, जब हम दोनों को ईगो R1 से कट करेंगे तो G और A के बीच में वो कट करेगा दोनों स्ट्रैंड्स पे, दोनों डीएनए के, और बिकॉज इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। अब यहाँ पे जो नीचे वाले बेसिस है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे ऊपर वाले बेसिस रिमूव हो गया, तो अब दिस इज़ ईजी फॉर दैम टू कंबाइन ना। तो DNA फ्रेगमेंट्स जॉइन एट द स्टिकी एंड्स। हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे टू कट द वेक्टर DNA एंड द फॉरेन DNA टू फॉर्म द सेम स्टिकी एंड्स। DNA फ्रेगमेंट जॉइन एट द स्टिकी एंड और रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। So steps in the formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme ईगो R1, endonuclease enzyme. Do you know what palindromes are? These are the group of letters that form the same words when read both forward and the backward. Example Malayalam. As against a word palindrome where the same word is read in both the direction, a palindrome in DNA is a sequence of base pairs that read the same on the two strands when orientation of reading is kept the same. See, point this line out when the orientation of the reading is kept the same. हमने orientation reading की same रखी है. For example, the following sequence reads the same on the two strands 5' to 3' direction. This is also true if read in the 3' to 5' direction.
Restriction enzyme cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strand. सेम टू बेसिस पे कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड पे सेम टू बेसिस के ऊपर कट करेगा. दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स. सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस मिलते हैं इसकी वजह से एंड्स पर. दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड द स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड. तो सारे स्ट्रैंड्स पे हमें जो है स्टिकी एंड्स मिलेंगे. दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स और दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस. These are named so because they form the hydrogen bond with their complementary cut counterpart. This stickiness of the end facilitates the action of the enzyme DNA ligase. क्योंकि इनके जो ends है वो stickiness जो है facilitate करता है action of the enzyme DNA ligase और क्योंकि ये form करते हैं hydrogen bond with their complementary cut counterparts. So we can also be asked like DNA ligase कौन से bonds form कराता है? Hydrogen bonds form कराता है. Restriction endonucleases are used in the genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genome. क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि recombinant DNA बनाने के लिए हम जो है DNA लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंड द रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दिस कैन बी जॉइंड टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. फॉरेन डीएनए लिया, वेक्टर डीएनए लिया, प्लाज्मिड लिया. सो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट. लाइगेजेस जॉइन द फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा. ये किससे मिला? हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से मिला और प्लाज्मिड डीएनए को जोड़ने से मिला. अब हमें क्या करना है? हमें इसे अपने होस्ट के अंदर भेजना है. होस्ट के अंदर भेजने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. सो जब भी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम अपने होस्ट के अंदर डाल रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. सो ई कोलाई दैन विल क्लोनिंग होस्ट विल क्लोन. यहाँ पे क्लोनिंग हो जाएगी, सेल डिवाइड होगा, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के भी डॉटर्स फॉर्म हो जाएंगे. You may have realized that normally unless one cuts the vector DNA and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. जब तक हम सेम restriction enzyme से vector DNA और source DNA को कट नहीं कर रहे तो हमें recombinant vector molecule नहीं मिल पाएगा. Separation and isolation of DNA fragments. तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में क्या करते हैं? अब हमने जो डीएनए फ्रेगमेंट्स निकालने हैं हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा और आइसोलेट भी करना पड़ेगा. देन हम उसे लाइगेट कर सकते हैं अपने प्लाज्मिड के साथ. तो कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक दो साइड्स पे कट कर रहा है, उसकी वजह से हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डीएनए के, पूरा डीएनए नहीं मिल जाएगा. So these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Gel electrophoresis एक टेक्निक है जिससे हम जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं हमें डीएनए के वो सेपरेट कर सकते हैं. Since डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज क्यों होंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं. न्यूक्लिक एसिड से कैसे बने होंगे? न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और वी कैन से डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोज शुगर होती है. सो डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग दैम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. एनोड की तरफ मूव होंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रही है और मीडियम और मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. और जेल क्यों? क्योंकि एक मीडियम और मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है जो कि जेली लाइक है. सो यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो नेगेटिवली चार्ज है उन्हें मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड under the electric field through the medium or matrix. Nowadays the most commonly used matrix is agarose gel, so which is a natural polymer. Natural polymer है ये. Remember बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आर्टिफिशियल पॉलीमर लिख देते हैं and we got cramped in that question. तो remember it is a natural polymer extracted from the seaweeds. So the DNA fragments separate resolve अकॉर्डिंग टू देयर साइज टू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल. एग्रोस जेल जो है सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves.
जितना ज़्यादा फ्रैगमेंट का साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा दूर तक वो जा सकता है। Look at the figure and guess at which end of the gel the sample was loaded. Let us guess here, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें साइज़ में ये वाला DNA fragment, so we can say that this is the largest fragment size और this is the anode. दिस इज़ द एनोड बिकॉज जो भी स्मॉलेस्ट वाले हैं वो मूव कर रहे हैं इस साइड को, और जितने भी स्मॉलेस्ट वाले हैं वो फारदेस्ट है वेल से। वेल इज़ द कैथोड प्लेस, और यहाँ पे सबसे हैवियर और सबसे बिगर साइज़ के DNA फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, सबसे स्मॉलर वाले एनोड के टर्मिनल पे मिलेंगे। So the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as the yttrium bromide, followed by the exposure to the UV radiation. You cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining. Remember this point. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि we can see the DNA fragments without staining and on the exposure of visible lights only. So this statement is incorrect. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट याद करना है। सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट, जो हमने यहाँ से सेपरेट किए DNA फ्रैगमेंट्स, उन्हें हम देख सकते हैं ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA विद द कंपाउंड नोन एज द इथेरियम ब्रोमाइड। सिर्फ इथेरियम ब्रोमाइड से जब हम स्टेन करेंगे तभी देख सकते हैं, और वो भी फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, हम यूवी रेडिएशन में एक्सपोजर देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देख सकते हैं। So you can see bright orange color bands of DNA in the yttrium bromide exchange gel exposed to the UV light. तो जब हमने जो सेपरेट किए DNA फ्रैगमेंट्स, उनको हमने जब स्टेन किया यttrium bromide में और जो स्टेन जेल है उसे एक्सपोज किया UV लाइट में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे DNA के। So the separated bands of DNA are cut out from the aqueous gel and extracted from the gel piece. तो जो सेपरेटेड बैंड्स हैं DNA के, जो हमें विजिबल हो गए हैं ऑरेंज कलर के बैंड्स, तो उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज द इल्यूजन। जब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जेल पीस से, तो इस प्रोसेस को हम इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजन। सो द DNA फ्रैगमेंट्स purified in this way are used in the constructing of recombinant DNA by joining them with the cloning vectors. A typical aqueous gel electrophoresis showing migration of undigested lane 1. Lane 1 is undigested DNA because यहाँ पे सबसे bigger size के DNA fragment है, and digested set of DNA fragment lane 2 to 4. 2 to 4 में थोड़े digested sets हैं because they are smaller in size and these are looking less heavier. Cloning vectors. Another tool for recombinant DNA technology is cloning vector. You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA. जो प्लाज्मिड्स होते हैं और बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल DNA. सो बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनका हाई नंबर होता है पर सेल, जिसकी वजह से उनका हाई कॉपी नंबर होता है विद ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड का 1 or 2 कॉपीज़ ही होगा पर सेल, वेयर अदर्स में है 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल। रिमेंबर, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं क्योंकि उनका हाई नंबर होता है पर सेल, बिकॉज ऑफ विच दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। लेकिन प्लाज्मिड में कुछ प्लाज्मिड का ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल होगा, कुछ का 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल होगा। देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। If we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or the plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. तो अगर हमने अपना एलियन पीस ऑफ DNA या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड DNA से इंटीग्रेट कर लिया, एक बार इंटीग्रेट कर लिया तो हम कॉपीज़ बना सकते हैं इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और द बैक्टीरियोफेज। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. अभी जो वेक्टर्स इंजीनियर हो रहे हैं वो इस वे में हो रहे हैं कि ईजी लिंक हो जाए फॉरेन DNA से, और रिकॉम्बिनेंट्स जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट से ईजिली हम पता लगा सकें। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट्स जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग पाया है, उनको भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो आजकल वेक्टर्स जो है जो यूज़ हो रहे हैं वो ऐसे इंजीनियर किए जाते हैं कि उसमें हमें ईजी लिंक भी कर सकें फॉरेन DNA को, और जिसमें नहीं भी हो पा रहे हैं उनको पता लगा सके कि किसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया है।
तो द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ORI की हमने पहले भी बात की थी कि जब तक इसमें इंटीग्रेट नहीं होगा, जब तक ये नहीं है प्रेजेंट, तब तक हमारा वेक्टर जो है, जो हमारा एलियन पीस ऑफ DNA है वेक्टर में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So, if one wants to recover many copies of the target DNA, should be cloned in a vector whose origin support high copy number. तो अगर हमें हाई कॉपीज़ चाहिए किसी भी DNA की, टारगेट DNA की, तो उसे ऐसे वेक्टर में क्लोन करना पड़ेगा जिसका ऑरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, बिकॉज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल्स द कॉपी नंबर. Selectable marker. In addition to ORI, vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. हमें ORI के साथ साथ वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और एलिमिनेट कर पाएँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को और परमिट कर पाएँ ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स. अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए. तो अगर हमने अपने होस्ट में जब वेक्टर के थ्रू अपना जो रिकॉम्बिनेंट DNA इंसर्ट कराया, तो अगर इंसर्ट कराया तो इट विल बिकम द ट्रांसफॉर्मेंट. एंड अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA आया तो मे बी कुछ एक जीन वर्क नहीं कर रहा होगा, लेकिन दूसरा जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस शो करेगा. और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है जिनमें ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA आया ही नहीं है तो वो नॉर्मली अपना कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे किसी भी एंटीबायोटिक के लिए. तो दे डू नॉट हैव द सिलेक्टेबल मार्कर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेक्टर. Transformation is a process through which an alien piece of DNA is introduced into the host bacterium. You will study the process in subsequent section. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin. Ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin are considered useful selectable markers for E. coli. E. coli के लिए क्योंकि नॉर्मल E. coli के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो जो जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन जो है यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं. द नॉर्मल E. coli सेल्स डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स. सो क्लोनिंग साइट की बात करें, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. किसी भी कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग प्रेफरेबली एक ही रिकॉग्निशन साइट की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे तो वो उतने ज़्यादा कट लगाएगा तो पता चला यहाँ भी रिकॉग्निशन साइट थी, यहाँ भी रिकॉग्निशन साइट थी और यहाँ भी थी, तो हमारा जो DNA है वो फ्रेगमेंटेड हो गया, इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गया. So, presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. फिर हमारी gene cloning जो process है वो complicated हो जाएगी. The ligation of alien DNA is carried out at the restriction sites present in one of the two antibiotic resistant genes. जो हमारे alien DNA है उसको हम ligate करने के लिए ऐसी restriction site यूज़ करते हैं जो 1 और 2 antibiotic resistant gene में present होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करते हैं. अगर यहाँ पे हमने अपना एलियन DNA को इंसर्ट कर दिया इसके एक रेस्ट्रिक्शन साइट पे, तो दूसरी एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंस चलेगा ना उसके पास. तो ट्रांसफॉर्मेंट से तो हम वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट में किसी भी एक रेजिस्टेंस एक के लिए तो रेजिस्टेंस रहेगा ना एक एंटीबायोटिक के लिए, क्योंकि दूसरे में तो हमने लाइगेट कर दिया DNA. लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास तो प्लाज्मिड आया ही नहीं और नेचुरली उसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है. सो फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट द फॉलोइंग DNA एट द BAM-H1 साइट. BAM-H1 साइट ये है. BAM-H1 साइट इज़ फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के लिए PBU1 PST1. रिमेंबर PBU1 PST1. सो मैंने तो ऐसे रिमेंबर किया था. PBU और PST जो एम्पिसिलिन के लिए है. टेट्रासाइक्लिन BAM-H1 सेल 1, BAM-H1 सेल 1. BST बेस्ट, BAM-H1 सेल 1, टेट्रासाइक्लिन बेस्ट. जो हिंट थर्ड है, क्ले 1 है और इको R1 है, ये नॉर्मल रिकॉग्निशन साइट्स है. यहाँ पे
ORI, origin of replication is present in PBR T22 plasmid, और ROP is proteins required for the replication process, और यहाँ पे PBU सेकेंड है, ROP में प्रेजेंट है. E. coli cloning vector PBR T22 showing excision sites, total 8 excision sites होती है यहाँ पे. HIM3, EcoR1, BAMH1, SAL1, PBU1, PSG1, CLA1, ORI and antibiotic resistant gene जो होते हैं ampicillin और tetracycline. ROP codes for proteins involved in the replication of the plasmid. तो अगर हमने BAMH1 साइट पे और tetracycline resistant gene पे हमने ligate किया अपना alien DNA, तो the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by creating the transformings on ampicillin containing medium. The transformings growing on ampicillin containing medium are then transferred on the medium containing tetracycline. तो अगर recombinants will grow on the ampicillin containing medium but not on the tetracycline, but non-recombinants जो होंगे वो grow होंगे दोनों medium पे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो किसी भी ग्रो नहीं होंगे. In this case, one antibiotic resistant gene helps in the selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to the insertion of the alien DNA and helps in the selection of recombinants. The selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome process because it requires simultaneous plating on the two plates having two different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of the chromosome substrate. क्योंकि ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत हेक्टिक था. लाइक हमें 2 प्लेट्स अलग अलग लेनी पड़ती थी अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए, फिर हमें उनको उनमें ग्रो करा के देखना पड़ता था, एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो वी हैव फाउंड द अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स दैट हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. recombinant DNA को हम इंसर्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस में beta-galactosidase एंजाइम की. तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम. उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो beta-galactosidase एंजाइम की सिंथेसिस करता है जीन वो इनएक्टिवेट हो जाता है. उसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, and this will not produce the beta-galactosidase enzyme. The presence of the chromosome substrate give blue color colonies in the plasmid in the bacteria does not have an insert. तो ब्लू कलर कॉलोनीज कब मिलेगी, जब beta-galactosidase एंजाइम प्रोड्यूस हो रही है. प्रोड्यूस कब होगी, जब वहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं है. अगर वहाँ पे इंसर्ट है तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. अगर वहाँ पे इंसर्ट नहीं है तो beta-galactosidase एंजाइम प्रोड्यूस होगी और क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर कॉलोनीज दे देगी. इफ द प्लाज्मा इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट. प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट, अगर हमने रिकॉम्बिनेंट जो DNA है, अगर हमने beta-galactosidase की जगह अपना DNA लगा दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट्स इनटू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द beta-galactosidase जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर. दीज आर आइडेंटिफाइड एज recombinant colonies. Vectors for cloning genes in plants and animals. You may be surprised to know that we have learned that the lesson of transferring genes into the plants and animals from bacteria and viruses, which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells, and first have to do what bacteria और viruses want. बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो हमारे यूकारियोटिक सेल्स में कैसे इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपना जीन्स जो है वो कैसे यूकारियोटिक सेल्स के अंदर डालना है और कैसे उनको जो बैक्टीरिया और वायरसेस है कैसे उनको कंट्रोल करना है कि और ग्रो कर पाए यूकारियोटिक सेल्स के DNA के हेल्प से और ग्रो कर पाए वो अपने कॉलोनीज़ को. तो फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस, ये एक पैथोजन है सेवरल डाइकोट प्लांट्स का. ये एबल है डिलीवर द पीस ऑफ DNA नोन एज द tDNA टू transform normal plant cells into the tumor cells and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. अब यहाँ पे क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस जो है पैथोजन है सेवरल डाइकोट प्लांट्स का. मोनोकोट प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता है, डाइकोट प्लांट्स का पैथोजन है. और यहाँ पे ये अपना पीस ऑफ DNA जो है इसका tDNA ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है इसके पास. तो ये अपना tDNA कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है नॉर्मल प्लांट सेल्स में और उनमें ट्यूमर जनरेट करके और ट्यूमर सेल्स को रिड्यूस करने को बोलता है कि केमिकल्स प्रोड्यूस करो जो पैथोजन को चाहिए. सो
सिमिलरली रेट्रोवायरसेस जो होते हैं एनिमल्स में, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस इज HIV वायरस. सो HIV वायरस कॉजेज द एड्स. रेट्रोवायरसेस जो है एनिमल्स में वो क्या करते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स. तो a better understanding of the art of delivering genes by the pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. अब यहाँ पे हमने पैथोजन से सीखा कि वो जीन जो है अपना जो जीन है वो यूकारियोटिक होस्ट में दे देते थे और वो अपना ट्रांसफॉर्म करा सकते थे और कॉलोनीज बना लेते थे. यहाँ से हमने सीखा कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इन पैथोजेंस को जो है हम यूज़फुल वेक्टर्स में क्रिएट कर दें और उसको फिर हम यूज़ करें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ह्यूमन्स में डालने के लिए और प्लांट्स में डालने के लिए. तो दैट ह्यूमन इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस हैव नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver the gene of interest to the variety of plant. अब ह्यूमन इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है एक्टोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस का उसे मॉडिफाई कर दिया और क्लोनिंग वेक्टर में, जहाँ पे वो पैथोजेनिक नहीं है लेकिन वो अभी भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकता है प्लांट्स के अंदर, टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर. Similarly, retroviruses have also been disarmed and also used to deliver desirable genes into the animal cells. So once a gene or the DNA fragment has been ligated into the suitable vector, it is transferred into the bacterial plant or the animal host. तो जीन और द DNA फ्रेगमेंट को हमने एक बार सुटेबल वेक्टर में लाइगेट कर दिया, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट में, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर पाएगा. Competent host for transformation with recombinant DNA. Since DNA is hydrophilic molecule, hydrophilic मतलब water loving molecule है DNA, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होता है, पोलर हेड्स आउटवर्ड होते हैं लेकिन नॉन पोलर टेल्स जो होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो इनसाइड होते हैं. अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आएगा लेकिन यहाँ से कैसे पास कर पाएगा क्योंकि वो तो वाटर हीटिंग है और जो DNA है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो भी वाटर लविंग है, तो वो पोलर हेड से तो पास कर जाएगा, यहाँ से पास नहीं कर पाएगा. So it cannot pass through the cell membranes. Why? In order to force the bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up the DNA. तो हमें उन्हें पहले ऐसे मतलब उनमें हमें फोर्सफुली जो है DNA भेजना पड़ेगा या फिर हमें उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि वो ले DNA को अंदर. This is done by treating them with a specific concentration of divalent cation, कैल्शियम एक डाइवैलेंट कैटायन है, उसकी स्पेसिफिक कंसनट्रेशन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बात कर रहे हैं, रिमेंबर बैक्टीरियल सेल्स में हम कैल्शियम आयन के स्पेसिफिक कंसनट्रेशन यूज़ कर सकते हैं विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विद विच द DNA एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट सेल वॉल. सेल वॉल में जो पोर होते हैं उससे कितनी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है DNA को मूव करने के लिए. रिकॉम्बिनेंट DNA कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस. हम एक और मेथड से कर सकते हैं फोर्स सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस. फिर उन्हें प्लेस करेंगे हम ब्रीफली ऑन 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक ट्रीटमेंट एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस. पहले हम उन्हें आइस पे रखेंगे, फिर हम उन्हें ब्रीफली 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक देंगे, देन वी पुट दैम बैक ऑन द आइस. दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA. उनकी वजह से जो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक कर सकता है बैक्टीरिया. इसमें कैसे होता था, आइस से जो है पहले पोर्स थोड़े कॉम्पैक्ट होकर देन हीट शॉक से ओपन हो जाएंगे, देन वी कैन इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA. This is not the only way to introduce alien DNA into the host cells. In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. अब यहाँ पे हीट शॉक ट्रीटमेंट और जो हम डाइवैलेंट कैटायन्स यूज़ करते थे वो हम यूज़ करते थे बैक्टीरियल सेल्स के लिए, रिमेंबर वो हम यूज़ करते थे सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के लिए. अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल सेल्स के लिए. एनिमल सेल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन. यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे न्यूक्लियस में एनिमल सेल्स के. तो इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स. अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद DNA इज द मेथड नोन एज बैलिस्टिक और जीन गन. बैलिस्टिक और जीन गन में क्या होता है, सेल्स को बॉम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद द DNA.
एंड द लास्ट मेथड यूजेज डिसआर्म पैथोजन। डिसआर्म पैथोजन से हम यूज़ कर सकते हैं अपने एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। हमने पहले बात किया, एनिमल सेल्स में हम रेट्रोवायरसेस यूज़ कर सकते हैं डिसआर्म वाले, और प्लांट सेल्स में हम मोडिफाइड टी.आई. प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियंस का। So now that we have learned the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating the recombinant DNA technology. Processes of recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology involves several steps in a specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at a large scale, and extraction of the desired product. Let us examine each of the steps in some details. आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। पहले तो हमें जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना पड़ेगा, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल चाहिए। देन वी विल आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल। रिकॉल दैट द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड टू बी इन द प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स में और क्या आ सकता है, प्रोटीन्स आ सकते हैं, आरएनए आ सकता है। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release the DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. So this can be achieved by treating the DNA, bacterial cells, plant और animal tissue with the enzymes such as bacteria cell है तो lysozyme दे देंगे, उसकी वजह से सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। सेलुलेज दे देंगे प्लांट सेल्स के लिए क्योंकि सेलुलोज की सेल वॉल होती है। काइटिनेज दे देंगे अगर फंगस की सेल वॉल है, और एनिमल सेल्स में तो कुछ नहीं देंगे क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो you know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. Histone proteins के साथ intertwined होता है ना DNA long molecules जो होता है। So the RNA can be removed by treatment with the ribonuclease. Ribonuclease दे देंगे तो ribonucleic acid को break कर देगा, उसकी वजह से RNA हट जाएगा। Whereas proteins can be removed by treatment with the protease. Protease दे देंगे तो proteins remove कर देगा। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates out. जो प्योरीफाइड डीएनए है अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट होगा आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो रिमेंबर दिस कैन बी द क्वेश्चन कि डीएनए को प्योरीफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं। तो आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। और ये दिखेगा कैसे, क्योंकि चिल्ड इथेनॉल डाला है तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमें, कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन अ सस्पेंशन। एक सस्पेंशन के अंदर कलेक्शन दिखेगा फाइन थ्रेड्स का। We can see here, तो DNA that separates out can be removed by spooling। अब जो DNA सस्पेंशन में जो फाइन थ्रेड्स की तरह दिख रहा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। स्पून से लेते हैं ना, जैसे हम कुछ वैसे दिख रहा है ना, तो वी कैन रिमेंबर इट लाइक स्पूलिंग। ओके, cutting of DNA at a specific location. Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzymes। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एक क्वेश्चन आया था उस पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। रिमेंबर दिस लाइन, restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzymes at optimal conditions for that specific enzyme. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion। अब restriction enzyme का digestion हुआ कि नहीं हुआ वो हमें चेक करने के लिए agarose gel electrophoresis करते हैं। DNA is negatively charged molecule तो वो ट्यूबर्ड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो दिस प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। वेक्टर डीएनए के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो द जॉइनिंग ऑफ द डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद द स्पेस आर मिक्स विद द डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए लाइगेज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कराएगा, स्टिकी एंड्स फॉर्म हो रहे हैं अगर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो। दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब हमें एम्प्लीफिकेशन करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूजिंग पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज होती है
जो हमारे हेल्पफुल होती है नए स्ट्रेंथ बनाने के लिए, उसका चेन रिएक्शन हो रहा है, मतलब हम नए स्ट्रेंथ बनाते जा रहे हैं, तो मतलब एम्पलीफाई कर रहे हैं एक डीएनए स्ट्रेंथ को। तो रिमेंबर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीनोम विंटेज यूजिंग पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज एंजाइम का बार बार रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से नए स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से एम्पलीफाई हो जा रहा है, एक छोटा सा डीएनए बड़ा से हो जा रहा है क्योंकि इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जा रही हैं। तो इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ द प्राइमर्स। 2 सेट प्राइमर के यूज़ करके हम जो है मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की और इन विट्रो बना सकते हैं। सो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर इज स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एट द कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ये क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो प्राइमर जो है वो आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए और हमें एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए। इससे हमने जीनोमिक डीएनए जो हमने दिया उसे टैबलेट की तरह यूज़ करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड्स दिए जो प्राइमर्स होते हैं यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन उसे एक्सटेंड करेंगे। और इफ द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ द डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, मतलब बिलियन टाइम्स की कॉपीज, बिलियन टाइम्स कॉपी बना सकते हैं हम। Such repeated amplification is achieved by the use of the enzyme thermostable DNA polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus। इन बैक्टीरियम होते हैं Thermus aquaticus जो हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन करती है जिसकी डीएनए पॉलीमरेज, उसे हम आइसोलेट कर लेंगे। थर्मोस्टेबल है, थर्मोलबाइल नहीं है। रिमेंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे हम थर्मोलबाइल डीएनए पॉलीमरेज लिख देते हैं फ्रॉम Thermus aquaticus, इट्स इनकरेक्ट। थर्मोस्टेबल होती है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होती है डीएनए पॉलीमरेज, so which remain active during the high temperature induced denaturation of the double stranded DNA। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का उसने हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन हो जाता है, लेकिन इस पॉलीमरेज रिएक्शन पॉलीमरेज एंजाइम का नहीं होता है बिकॉज इट इज थर्मोस्टेबल। सो इफ द desired amplified fragment in the desired can now be used to ligate in the vector for further cloning। अब हमने पढ़ा कि हम पीसीआर रिएक्शन से पॉलीमर चेन रिएक्शन से हम बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं और वी सिंथेसाइज डीएनए की फर्दर कॉपीज़ विद द हेल्प ऑफ द 2 सेट्स ऑफ द प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल होनी चाहिए। थर्मोस्टेबल थर्मस एक्वाटिकस से मिलती है, टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। तो ये अगर हमारा कोई रीज़न है एम्पलीफाई होने के लिए तो उसका पहले हम डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली डन एट 95 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में होता है डीनेचुरेशन प्रोसेस। फिर अनियलिंग प्रोसेस होते हैं, अनियलिंग प्रोसेस एट 72 डिग्री सेल्सियस। अनियलिंग प्रोसेस में जो होता है हमारे एक्सटेंशन प्रोसेस इज डन एट 72 डिग्री सेल्सियस, डीनेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस और अनियलिंग प्रोसेस 50-55 डिग्री सेल्सियस समथिंग। आई विल मेक अ शॉर्ट अबाउट दिस टेम्परेचर्स टू मेक इट मोर क्लियर। सो मूविंग ऑन, डीनेचुरेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अनियलिंग प्रोसेस में हमारे दोनों साइड प्राइमर के जाएंगे और ज्वाइन हो जाएंगे टेम्परेट स्ट्रैंड के साथ, और इसी अनियलिंग में ही हम डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देंगे जो कि टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दे देंगे। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती है जिनको यूज़ करके प्राइमर जो है फर्दर स्ट्रैंड्स फॉर्म कर देगा। एक्सटेंशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट एक्सटेंडिंग द प्राइमर्स। सो अगर इसकी हमने 30 साइकिल्स रिपीट कर दी तो डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। Polymerase chain reaction, each cycle has 3 steps: denaturation, primer revealing and extension of primers. Insertion of recombinant DNA into the host cell or organism.
There are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cells. बहुत सारे methods होते हैं introduce करने की ligated DNA को recipient cells में. Recipient cells, after making them competent to receive, take up the DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene of interest, gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, is transformed into the E. coli cells, the host becomes transformed into ampicillin resistant cells. If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow and untransformed recipient cells will die. Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select the transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistant gene in this case is known as selectable marker. इस केस में ampicillin resistant gene को selectable marker कह सकते हैं. So obtaining the foreign gene when you insert the piece of alien DNA into a cloning vector and transform it into a bacterial or plant animal cell, when the alien DNA gets multiplied. So in almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. हमें desirable protein produce करना है, hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed. हमें recombinant DNA जो हमने produce किया है वो express होना चाहिए बस. तो the foreign gene gets expressed under an appropriate condition. The expression of foreign gene in host cells involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. Can you think of any reason why there is need for large scale production? If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called the recombinant protein. अगर हमारा जो प्रोटीन है वो encoding gene is expressed in heterologous host, किसी heterologous host में हमने इसे एक्सप्रेस किया तो उसे हम recombinant protein बोल देते हैं. तो the cells harboring clone genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using the different separation techniques. तो जो हमने जो क्लोन जीन बनाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया, उसे हम ग्रो कर सकते हैं स्मॉल स्केल में लेबोरेटरीज में भी, और द कल्चर जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन एंड देन प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. So the cells can also be multiplied in a continuous culture medium wherein the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cells in the physiologically most active or log or exponential phase. तो इस टाइप का कल्चर हम कहाँ देखते हैं? बायोरिएक्टर्स में देखते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हम, और जहाँ पे यूज मीडियम जो है ड्रेन आउट हो जाएगा एक साइड से और फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाएंगे टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस द लार्ज बायोमास लीडिंग टू द हायर yields ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन का स्मॉल स्केल की जगह बहुत सारे अमाउंट पे मिल जाएगा. तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट yield appreciable quantities of product. To produce in large quantities, the development of bioreactors, where large volumes 100 to 1000 liters of culture can be processed was required. Thus, bioreactor can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into the specific products. जो raw materials है वो biologically convert हो रहे हैं specific products के अंदर, individual enzymes के अंदर या फिर proteins के अंदर, etc. Using microbial plant, animal और human cells. Microbial plant को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम animals को यूज़ कर सकते हैं या human cells को यूज़ कर सकते हैं. तो a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions. Bioreactor जो होता है वो provide करता है optimal conditions को for achieving the desired product by providing optimal growth conditions such as suitable temperature, pH, substrate, salts, vitamins और oxygens. So remember, suitable growth conditions में क्या क्या आ सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, pH हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकती है. द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर द स्टिरिंग टाइप विच आर शोन इन द फिगर 9.7. अब यहाँ पे सिंपल स्टर टाइप बायोरिएक्टर भी है, स्पैच स्टर टैंक बायोरिएक्टर भी है थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्च्ड. यहाँ पे जो है स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्च कर दिया जा रहा है. So this is sparse stir tank bioreactor. This is simple stir tank bioreactor.
सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर में क्या क्या होता है, एक मोटर होता है, एक फोम ब्रेकर सिस्टम होता है। ये बात सबसे पहले वाला फोम ब्रेकर है, फोम ब्रेक करेगा क्योंकि फोम जो है वो लाइट होता है तो सबसे ऊपर आएगा, तो सबसे फोम ब्रेक करने के लिए हमें सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा ब्रेकर। तो फ्लैट ब्लेडेड इम्पैलर है, कल्चर ग्रॉथ है जो घूमता रहेगा और मिक्स करता रहेगा। स्टेराइल एयर जाती है, नीचे से जाती है, ऊपर से एयर भेजेंगे तो वो तो ऊपर ही रहेगी ना, नीचे क्यों जाएगी। स्टीम फॉर स्टेराइलाइजेशन, स्टीम भेजते हैं यहाँ से हम स्टेराइलाइजेशन के लिए। और ऐसे बेस और पीएच कंट्रोल भी होता है बस, पीएच कंट्रोल के लिए भी ऐसे बेस सिस्टम भी है हमारे पास। और स्पार्च जो स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेराइल एयर को स्पार्च कर दिया जाता है, तो यहाँ पे गैस एंटेनमेंट्स बन जाते हैं। और यहाँ पे जो है इंक्रीज सरफेस एरिया होता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, क्योंकि ये जो है सरफेस जो है रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर सा होता है। और बबल्स जो होते हैं ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, बबल्स फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र एरिया इंक्रीज हो जाता है। A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base. Cylindrical होता है और इसका बेस जो होता है कर्व होता है, to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look the figure closely, you will see the bioreactor has an agitator system. एक agitator system है इसके पास, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, और फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट्स भी है इसके पास, और सैम्पलिंग पोर्ट्स भी है, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियडिकली। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बात करें तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब प्रोडक्शन ऑफ द हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। हमने देखा है ना, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास मार्केट में तभी आते हैं ना जब उनके डेकोरेशन होता है, अच्छे से पैकेजिंग वगैरह होता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, बायोसिंथेटिक हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब उसकी पैकेजिंग होनी है और उसको अलग अलग प्रोसेसेस से गो थ्रू करते हैं बिफोर मार्केटिंग, टेस्टिंग भी होती है उसकी। द प्रोसेसेस इंक्लूड द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रिफर्स टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें सेपरेशन आता है, प्योरीफिकेशन आता है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी देने पड़ते हैं सो दैट लॉन्गेविटी बढ़ा सके, हम सेल्फ लाइफ बढ़ा सके प्रोडक्ट की। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन द केस ऑफ ड्रग्स। अगर हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मतलब ड्रग्स बनाए अगर हमने, तो उनको हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में भी भेजना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही तो हम किसी भी मेडिसिन को या ड्रग को तो सेल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। सो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। रिमेंबर, सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के केस में क्लिनिकल ट्रायल्स भी जाते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होती है हर प्रोडक्ट की होती है। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कैसे हो रही है। समरी की बात करते हैं तो biotechnology deals with large-scale production and marketing of products and processes using live organisms, cells or enzymes. Modern biotechnology uses genetically modified organism was made possible only when man learned to alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA. This key process is called recombinant DNA technology or genetic engineering. This process involves the use of restriction endonuclease, DNA ligase, appropriate plasmid or viral vectors to isolate and vary the foreign DNA and carry the foreign DNA into the host organisms, expression of the foreign gene, purification of the gene product such that the functional protein and finally making a suitable formulation for marketing. Large scale production involves use of bioreactors.
So this was all about your chapter 1 of biotechnology principles and processes. I hope you like the lecture. If you like the lecture, please comment on the channel. Please like, subscribe and share the channel. Thank you for listening me out. Have a great day.